Hello everyone, welcome to my channel on history revision, and we are going through the history series, modern Indian history, and we are almost in the last phase of the modern Indian history series. This is most probably the last video, and as per the previous questions of UPSC, we have prepared all the videos in line with the previous UPSC papers. It was not मतलब questions are not straight even in history. People need to understand in depth. थोड़ा डेप्थ में जाने का आवश्यकता है. So we'll see. Just remembering facts is not enough, and we have to understand things in little bit detail. लास्टली हमने देखा था कि 1999 एक्ट 1919 एक्ट जो हमने देखा था, दैट वाज द लास्ट मॉन्टेग्यू चमफोर्ड रिफॉर्म्स. उसके बाद हम शुरू करते हैं. हमने जलियांवाला बाग का देखा था, रॉलेट एक्ट का देखा था. ऑल दीज थिंग्स फोर्स्ड महात्मा गांधी टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. जो दिस इज ऑलमोस्ट द फर्स्ट major movement on a large scale. मतलब स्वराज this is one of the biggest after Swadeshi movement, we can say, but on a wider scale this is much bigger than Swadeshi movement, we can say, because गांधी जी का ये पहला मूवमेंट कहा जा सकता है. And at the same time there was a Khilafat movement also, the Muslims agony against the British during the because of the World War consequences. So non-cooperation movement and Khilafat movement both were going hand in hand. And now Gandhi ji gave a call कि एक ये नॉन वायलेंट मूवमेंट हमें लॉन्च करना है based on the Swadeshi policy. And the major means of the movement are boycotting foreign goods, boycotting British goods, and promoting Indian goods. जैसे स्वदेशी में हमने देखा था वैसे ही है यहाँ पे भी. But this is on a large scale, and this is can be said it's a large scale mass movement on a serious note. And he urged all the men and women to work for the khadi, स्पिनिंग करने के लिए मतलब एक एडवाइस दिया था. सो this movement was very vigorously started. It was vigorously spread throughout the country, but all of a sudden now the movement was in full-fledged, but suddenly there was an incident at Chauri Chaura. Because of the Chauri Chaura incident, Gandhiji called off the movement. This was highly criticized because many political parties, many political leaders, they were in the full-fledged मतलब form में थे सब, and the emotions were high, the intentions were very rigorous. चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था. इसमें 22 police people were killed. So this made Gandhiji to think about the non-cooperation movement. He immediately called off. And इसमें Motilal Nehru, C.R. Das were very much opposed of the Gandhi's idea. And even Muhammad Ali Jinnah was upset with the idea. Non-cooperation movement को ऐसे विद्रोह करना ठीक नहीं है बोल के बहुत लोग समझे थे. But yeah, the things went in this way only. And later, Britishers has alleged that Gandhiji has created a lot of panic and a lot of hatred towards English, and they arrested Gandhi and put in jail. We'll see further. On a whole, we can say that non-cooperation movement gathered a lot of masses, and it was the first major shock for British Empire. इतना level पे mass, this is the first mass movement, you can say. And स्वराज ये 1905 बंगाल पार्टीशन के टाइम पे भी इतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, इतना गैदरिंग नहीं हुआ था, इतना मास इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था. स्वदेशी मूवमेंट वाज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड टू बंगाल प्रोविंस, मोस्टली. थोड़ा बहुत हुआ था, बट नॉन कोऑपरेशन वाज मच बिगर देन दैट. द मूवमेंट्स from now onwards we'll see
every movement is much bigger than the earlier one. ठीक है, नॉन कॉपरेशन इज डेफिनेटली बिगर देन the 1905 Swaraj movement. But see, there was a lot of repercussions of the non-cooperation, the withdrawal of non-cooperation movement. Uh, Many people, many Congress people itself, they were not in support of Gandhi ji withdrawing the movement because एक इंटेंसिटी पकड़ा था, मतलब मूवमेंट में एक बहुत बड़ा इंटेंसिटी आया था. नाउ दे थॉट दैट ब्रिटिश विल बी डेफिनेटली क्रम्बलिंग to their demands. But suddenly the Chauri Chaura incident, everything, Mahatma Gandhi said that we are not prepared for the movement, mass movement के लिए हम prepared नहीं है, we will withdraw it. And many people didn't go against Gandhi because Gandhi was a national hero by then. So everyone said that Gandhi ji को मान लेते. But few people they disagreed with Gandhi and they were C.R. Das and Motilal Nehru. नॉन कॉपरेशन के बाद एक्चुअली गांधी जी को अरेस्ट किया गया था and he was put in jail. But these people, they have addressed that एक स्वराज पार्टी को एस्टेब्लिश किया था. देयर से वाज कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर करेंगे एंड ब्रिटिश के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वे पे. दिस वाज द मेन आइडिया. चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू वाज अ फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. सो दीज पीपल आर कॉल्ड एज प्रो चेंजर्स. इनके खिलाफ एक ग्रुप बना था and they are called no changers. Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, even Jawaharlal Nehru, he went against his father at this time. ठीक है, he supported Gandhi and Gandhi ji was released in 1924. After that, गांधी जी के जितने भी supporters थे, they opposed and they said that we have to continue the movement. ये काउंसिल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, they were called no changes. Then a committee बैठा था. This is not related to the movement as such, but these committees in between, Britishers have set up few committees. We have to look into these things. अब इस कमिटी में 4 इंडियन को बिठाया था. You just remember these names. कभी कभी ये आ सकता है. Few things, UPSC is not asking direct questions nowadays. तेज बहादुर सप्रू के ऊपर एक क्वेश्चन हमने देखा था, लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था. और मोहम्मद अली जिन्ना वाज आल्सो मेंबर ऑफ दिस कमिटी 1924 में. ये शिवस्वामी अय्यर एंड आर.पी. परांजपी. जस्ट रिमेंबर मुदिमान कमिटी, इसमें 4 इंडियंस थे. ठीक है, एंड दीज वर द मेंबर्स. जस्ट नॉट मच, नथिंग मच इंपॉर्टेंट अबाउट दिस, बट जस्ट रिमेंबर इंडियंस कमिटी के मेंबर्स थे. रिमेंबर साइमन कमीशन 1927 जो हमने देखा था. 1919 के जो चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे उसमें ये मेंशन था कि ये कमीशन बिठाना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो हमने बात किया था. एंड बेस्ड ऑन दैट लाइन ओनली साइमन कमीशन वाज formed. But the drawback of this commission is all the members of the Simon Commission are Europeans. It's an all-white commission and mainly to study the provisions of 1990 Act. अब इस कमीशन में ज़्यादातर, मतलब पूरा every parties INC opposed very vigorously. मतलब they said that Simon Commission is not an authentic commission. अभी इंडियन कोई है ही नहीं तो इंडियन इंटरेस्ट को कैसे पता चलेगा. We are Indian should be there in the commission. So they started protesting. In this event only, the Lala Lajpat Rai was protesting in Punjab, and he was beaten badly by the police, local police. तो उन्हीं की वजह से वो मौत हो गया था. And later on, Bhagat Singh took the revenge of this incident. But Simon Commission, there were questions, many questions on the Simon Commission also. You have to look about these things. कमीशन के इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट सी देयर वाज अ क्वेश्चन दैट व्हाई द साइमन कमीशन वाज अपोज्ड. इट्स मेनली अपोज्ड बिकॉज ऑफ द ऑल द मेंबर्स आर यूरोपियंस. बस इतने याद रखिए, बस चलेगा. उसके बाद ये बटलर कमेटी आया था. दिस वाज मेनली टू लुक द सेंटर स्टेट रिलेशंस टाइप का है, मतलब सेंटर के और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो हुआ था. उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में. सी इन पैरेलल टू द साइमन कमीशन, देन इवन आईएनसी थॉट दैट साइमन कमीशन क्या देखेगा, हम वी कैन जनरेट आवर ओन रिपोर्ट, वी कैन जज आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. सो
they said that हम भी एक constitution बनाएंगे. So there was a all party conference in which it was decided that Motilal Nehru बनाएंगे एक Nehru report. So this was named as Nehru report. A major recommendations of Nehru report were उसी time पे dominion status मांगा गया था, fundamental rights they were asked, they were designed, parliamentary form of government भी, you know, these three important things they have mentioned in the Nehru report. So you have to take care of these things. Not all the things are important in Nehru report, but you need to remember these things. Dominion status मांगा गया था, कब मांगा गया था? नेहरू रिपोर्ट में मांगा गया था. You know, you just remember these things. And इसके हिसाब से जिन्नास 14 पॉइंट आया था. जिन्नास 14 पॉइंट इसी टाइम पे आया था. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. जिन्ना का जो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पे जो हो रहा था उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं की मत करिए. यू नो, ही आल्सो फ्रेम्ड 14 पॉइंट्स टू safeguard the interests of Muslims. उसके बाद पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन. यू नो, बोथ दिस रिपोर्ट्स वर रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश. यू नो, द ब्रिटिशर्स डिडंट एक्सेप्ट दीज टू. दे सेड दैट मानेंगे नहीं इनको. डोमिनियन स्टेटस तो ब्रिटिश तो मानेंगे ही मानता ही नहीं है. बहुत लास्ट में जाके डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया था इंडिया को. So when the Britishers have rejected these reports, then INC took a Purna Swaraj declaration. अब बोला था कि हमें इंडिपेंडेंस मिलना ही है. The only aim is we have to get the independence. अब इसी टाइम पे this day is important. You know, 31st December 29 में रावी रिवर के शोर पे, you know, लाहौर में ये डिक्लेरेशन किया था. And in this declaration only, it was hoisted, a national flag was hoisted by Jawaharlal Nehru. Just remember. And इसी डिक्लेरेशन के बाद they have declared that 26th of January should be declared as an Independence Day. इसीलिए 26 जनवरी का सिग्निफिकेंस आया था, बाद में जाके उसको रिपब्लिक डे बना दिया था. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन. एंड इसके बाद क्या हुआ था, वाइस रॉय ने बोला था कि हम बैठ के बात करेंगे. एंड बैठ के बात करने के लिए ऑफर तो दिया था गांधी जी को, बट यू नो गांधी जी रिफ्यूज्ड. बोला था कि हम नहीं बात करेंगे. एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक नज़ारा लेकर आया था वाइस रॉय ने. सो गांधी जी रिफ्यूज्ड, बट ही वाज पुट इन जेल, ही वाज अरेस्टेड. नेक्स्ट हम चलते हैं 1986 में. बेसल कन्वेंशन दैट रिलेट्स टू ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट. सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हजार्डस वेस्ट के दिस मेनली इज रिलेटेड है ये बेसल कन्वेंशन. स्वराज रेवोल्यूशन. उसके बाद आया था 87. एवरीवन नोस इट. दिस इज ब्रंटलैंड कमीशन. दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हुआ था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन यही से आया था. जहां तक 78 मेंबर्स के सारे न्यूज़पेपर्स में जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रहा है यही से डिराइव ट्रैवल किया था. फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम दे सॉल्ट लॉ. उस टाइम पे डिजाइन सॉल्ट व्हाट लॉ इज यही सस्टेनेबल होता था डेवलपमेंट. कि उसके बाद आया था द ग्रेट 1992. ओनली गवर्नमेंट कैन मेक दिस इज कॉल्ड द रियो अर्थ समिट. अब यही कॉमन मैन कैन नॉट मेक द शुरुआत हुआ था. बहुत सारे चीज यहाँ से शुरू हुआ था हमारे. मेकिंग सॉल्ट देखते हैं क्या क्या हुआ 1992 के बाद. गवर्नमेंट लॉ. तो गांधी जी इनके फॉलोअर्स के साथ मिलके वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था. ठीक है. एंड दिस स्टार्टेड द सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट ऑल अक्रॉस द कंट्री. एंड ऑन ए larger scale we can see that this is much bigger than non cooperation movement also. non cooperation के टाइम से भी ये बहुत बड़ा है. we'll see many people participated, women participated, you know, common man participated, a lot of employees, government employees participated, and the methods adopted here also were boycott and swadeshi, more or less. The movement was spread to south by Chakravarti Rajagopalachari, and he also led a similar Dandi march in Trichinopoli. In Darshana Salt Works, Sarojini Naidu and Manilal Gandhi, these people were influential during this time. You know, during the Dandi march, it was very violent things happened. Britishers took it very violently. Matlab, this time they haven't excused for the non-violence and all. You know, 2 people were killed during the brutal Lati charge. There were a lot of demonstrations, a lot of boycott was happening, and there was one more Khan Abdul Ghaffar Khan.
he was called the Frontier Gandhi. So this Frontier Gandhi also, he was doing a non-violent protest in the northwest Frontier province, and his revolutionaries were called as Khudai Khidmatgars. Just remember these facts; these are important. And you know, all the protests were non-violent. अब आप देखिए कि ब्रिटिशर्स के इतने ब्रूटल चार्जेस के बिहाफ में भी पीपल मान लिया, गांधी जी ने जो डायरेक्शन दिया था उसी को मान लिया था. दे प्रोटेस्टेड पीसफुली. इट वाज अ नॉन वायलेंट नॉट प्रोटेस्ट. इसी के टाइम पे कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जस्ट टू पैसिफाई दी डिप्रेस्ड क्लासेस. उनको बोला गया कि जस्ट लाइक मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, दे सेड दैट डिप्रेस्ड क्लासेस को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे. बट गांधी जी vehemently opposed this, saying that this would further divide further result in the divide in between Hindus itself. So in between there was a lot of discussions between the team supporting Gandhiji and the team supporting Ambedkar. Finally there was a pact. It was called Pune Pact. पूना में जब गांधी जी अरेस्ट किया था, गांधी जी को जेल में थे, जेल में ही पूना पैक्ट किया था. ठीक है. एंड लेटर ऑन दे अग्रीड. अंबेडकर जी भी अग्री कर चुका है. विल सी इंडिविजुअली व्हाट अबाउट गांधी जी एंड अंबेडकर व्हाट दे हैव डन, क्योंकि यहाँ पे इन डेप्थ तो जा नहीं सकते क्या क्या बुक्स लिखा है, क्या क्या लिटरेचर है, हाउ दे वर इन्फ्लुएंस्ड. विल डू इट डेफिनेटली a separate video for that. Out of all the unrest going on in India, British media also started criticizing Britain. तो इवन ब्रिटिश थॉट दैट मतलब कुछ तो करना पड़ेगा. देन दे रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. एंड इरविन ने इस बार बुलाया था, कौन आएंगे, बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, क्या क्या करेंगे ऐसे बोल के. देन कांग्रेस वर्किंग कमेटी दे हैव डिसाइडेड गांधी जी को भेजते पहले इरविन जी के पास. ठीक है. गांधी इरविन बैठे थे एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू कैन सी द टू वर मीटिंग एज इक्वल्स. इंडियंस को इक्वल पोजीशन में वाइसरॉय देखना, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस वी कैन से. एंड दिस वाज कॉल्ड एज गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट. दिल्ली में हुआ था ये. तो इरविन ने कहा था पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में आप पार्टिसिपेट करिए, वी आर रेडी टू लिसन टू इंडियंस. ये वाइसरॉय ने दिया था. ठीक है. एंड द आईएनसी शुड स्टॉप सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. गांधी इरविन पैक्ट में ज़्यादातर यही है. वी कैन गो different in different aspects, but main aspects are these things. On a whole, we'll see what are the reasons of civil disobedience. एक तो हमने देखा था कि वो दे हैव रिजेक्टेड दी पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन में जो हुआ था, वो तो रिजेक्ट किया था, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था. विल सी अदर रीजंस आल्सो हियर. मेन थिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन. साइमन कमीशन फॉर्मेशन पे ही इतना लोगों में गुस्सा आया था कि आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल आल्सो दे हैवंट इंट्रोड्यूस्ड अ सिंगल इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन. दैट्स अ मेजर थिंग. एंड ये डोमिनियन स्टेटस का डिमांड, नाउ दे हैव सीन दैट डोमिनियन स्टेटस तो दे नहीं रहे. ब्रिटिश तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गिविंग द डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया. एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी सोशल रेवोल्यूशनरीज को किसी को भी मतलब कहाँ से भी उठा रहे जाके जेल में डाल रहे. दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज नॉट जस्ट ऑल्सो. ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स गांधी जी सेड दैट अभी लॉन्च करना ही है किसी भी तरह. सो दीज वर द अदर रीजंस ऑफ सीडीएम ऑल्सो. विल सी उसके बाद क्या हुआ था. गांधी जी वेंट टू लंदन. ही पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में पार्टिसिपेट किया था. बट ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी. ब्रिटिशर्स वर नॉट मतलब एक झूठा सा वादा किया था. बट आफ्टर गोइंग टू लंदन गांधी वॉज नॉट सेटिस्फाइड. ही सेड दैट बट कुछ नहीं करना है, मेरे लोग मर रहे वहाँ पे. पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी एंड यू आर एंजॉइंग ए lavish lifestyle in London. So he completely rejected all the ideas of second round table conference. And he came back to India. And Britishers understood मतलब गांधी जी क्या करने वाला है.
ब्रिटिशर्स वर ऑल मतलब दे आर रेडी। तो गांधी जी पहुंचते ही मतलब ही सेड दैट नथिंग डूइंग, सिविल डिसिप्लिन विल स्टार्ट। तो स्टार्ट करते ही ब्रिटिशर्स ने बहुत रुथलेसली मतलब सारे कांग्रेस लीडर्स को और जितने भी ये सिविल डिसोबीडियंस चलाने वाले हैं सबको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया था। एंड दे हैव सेड दैट प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस, एवरीथिंग, picketing shops, all these were declared as illegal. And you know, this arrests and the fightings, it was not going in an effective manner. So even Gandhi ji in finally in 1934 he has announced for CDM. CDM के बाद एक मतलब एक बात तो ध्यान में आया था कि every person almost now there is a sentiment like you know common man also wants independence from the British. अब तो एक टाइम पे आ गया था, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन दिस वाज नॉट द थिंग, यू नो। नाउ देर इज एन अनरेस्ट इन लॉट ऑफ प्रोविंसेस अक्रॉस इंडिया। छोटे छोटे टाउन से लेके दे बच्चे बच्चे जान गए थे कि मतलब ब्रिटिश कौन है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधी जी, यू नो। द अर्लियर लीडर्स, मॉडरेट लीडर्स हो गया, रेवोल्यूशनरी लीडर्स हो गया, रेवोल्यूशनरीज के बारे में पीपल यूज टू हैव ए सिंपथी, people used to have sympathy कि ब्रिटिशर्स उसको मारे जा रहे हैं। people used to, ब्रिटिशर्स used to hang them, ब्रिटिशर्स used to shoot them। कितने हमने देखा था जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी में 43 people were executed, and you know the heinous tortures given by British in the prisons, they are much more worse। तो यू नो मास मूवमेंट एक मतलब मैं आके खुद लड़ूंगा ऐसे बोल के किसी में मतलब नोबडी थॉट ऑफ दीज थिंग्स। These are the achievements of Mahatma Gandhi. You have to remember these things from non-cooperation movement itself. These started मतलब एक सड़क पे जाने वाले भी समझ गए कि मुझे लड़ना है, ब्रिटिश से लड़ना है बस। You know this type of mass movement was brought by Mahatma Gandhi, and everybody started participating. You know a common man used to think that एक just cause के लिए मैं जाऊंगा, जेल जाने तक सब तैयार थे। every सत्याग्रही went to jail and they were not afraid of jails at this time। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आफ्टर ऑल दिस ट्रबल्स, आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, देन ब्रिटिशर सेड हम और कुछ करते हैं आपके लिए, इंडिया के लिए हम सोचते हैं, ऐसा बोल के मतलब एक एक्ट लाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्चुअली दिस इज ए गुड एक्ट वी कैन से। बेस्ड ऑन दिस एक्ट ओनली मेजॉरिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये लोग किया था, बट यू नो दे हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस टू इंडिया और डोमिनियन स्टेटस। इस एक्ट में भी कुछ नहीं बताया था। मेनली दिस वाज यू नो टू रिफॉर्म द 1919 स्ट्रक्चर। 1919 में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था उसको रिफॉर्म करने के लिए। एंड द मेन प्रोविजन, मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट इज द डायरकी इन प्रोविंसेस हैज बीन अबॉलिश्ड। ठीक है, डायरकी जो इंट्रोड्यूस किया था, एंड दे हैव डिटरमिन्ड टू अबॉलिश डायरकी। डायरकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, एंड इट वाज नॉट डूइंग एनी गुड टू इंडियंस। द इंडियन लीडर्स स्टार्टेड promoting these ideas. So finally Britishers, they had to, because you know there is a lot of pressure developing on the British. So finally they have abolished diarchy, and you know this is the first time introduction of direct elections हुआ था। हमने जो पिछली बार देखा था वो डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस टुक प्लेस। 1937 में इसी एक्ट के बेसिस पे डायरेक्ट इलेक्शंस हुआ था। एंड द वोटिंग फ्रैंचाइज हमने देखा था पिछली बार जो है, वोटिंग फ्रैंचाइज किसको होते थे? जो पैसे वाले थे उसी के पास वोटिंग फ्रैंचाइज, वोट का हक जो है, इट वाज नॉट अ यूनिवर्सल फ्रैंचाइज इन 1919। वी हैव सीन दैट 3,000 रुपए जो टैक्स भर रहे वही वोट कर सकते थे, मतलब कॉमन मैन वोट नहीं कर सकते थे। But you know this act, this is a major change in the act, and these are the small changes we can say. They have reorganized the provinces. Sindh was separated from Bombay, Bihar and Odisha was separated into separate provinces। ठीक है, Burma was completely separated from India। You can see these मतलब provincial provinces को autonomy से अलावा भी मतलब provinces को separate किया गया था। And this laid a foundation for the establishment of a federal court। You know these are the features। आप ये मतलब these are important features you can remember of the 1935 act। एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक बात किया था। ठीक है,
फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब एक यूनियन ऑफ इंडिया टाइप का एक आइडियोलॉजी भी इस एक्ट में आया था, where they have stated that it comprises of British India and princely states, एक बेर आइडिया दिया था इसमें। उसके बाद आया था 1937 इलेक्शंस, वेयर 35 में जो दिया गया था डायरेक्ट इलेक्शंस हैपेंड इन एवरी प्रोविंसेस एंड टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो। लाइक मतलब लोकसभा इलेक्शन हुआ था और ये जो लोकल एमएलए का इलेक्शन होता है वो भी हुआ था। एंड इन मेनी ऑफ द इलेक्शंस स्टेट प्रोविंसेस में कांग्रेस स्वेप्ट द पोल्स। बहुत सारे पार्टीज हुआ करते थे उस टाइम पे, जब भी अभी हम देख रहे हैं कांग्रेस के अलावा बहुत सारे पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज। एट दैट टाइम ऑल्सो देर आर मेनी पार्टीज, बट यूनानिमसली कांग्रेस वॉज विनिंग एवरीवेयर। कुछ जगह छोड़ के मतलब मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज छोड़ के ज़्यादातर कांग्रेस ने जीत लिया था, इवन फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव। एंड उसके बाद क्या हुआ था कि 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज वेरी इंटेंस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं था। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट वॉज मच डिस्ट्रक्टिव, पीपल हैव एडवांस्ड इन देयर टेक्नोलॉजी एंड ऑल। एंड ब्रिटिशर्स ने जैसे पहले भी किया था, विदाउट कंसल्टिंग द आईएनसी दे सेड दैट इंडिया इज एट वॉर। तो दिस डिडंट गो वेल विद द इंडियंस। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दे हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड अ मिनिस्ट्री बेस्ड ऑन दिस गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के हिसाब से दे फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज, ऑल दिस मिनिस्ट्रीज दे हैव रिजाइन। दे सेड दैट ये तो बकवास है, हमें तो पूछना चाहिए, हम मिनिस्टर है, मिनिस्टर को बिना पूछे करेंगे क्या। ब्रिटिशर ने ऐसे कैसे मतलब डिसीजन ले लिया कि बिना मिनिस्टर को पूछे। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग्स हैव कम एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव रिजाइन। मतलब हम नहीं करेंगे भाई, आप ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे तो हम किस लिए बैठे। देन वाइस रॉय उस टाइम पे जो लिंगलिथगो थे, ही इश्यूड ए स्टेटमेंट। इसको शिमला में इशू किया था 8 अगस्त 1940 को। दिस इज कॉल्ड मोस्टली अगस्त ऑफर। हम इसके बारे में देख इसमें ज़्यादातर ये बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम सेटअप करेंगे, आपके लिए खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम सेट करेंगे, ऐसा बोल के दे हैव गिवन द अगस्त ऑफर। बट it was not totally acceptable to the INC nor or Muslim League or anybody party, but you can say that August offer was laid a foundation for the setting up of constituent assembly. इतना आप याद रख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया कहाँ से आया था, अगस्त ऑफर से आया था। देन दिस वर नॉट वर्किंग आउट, these things were not working out. Then INC thought that अभी और मतलब वार तो चल ही रहा है, so we have to put lot of pressure on British, only then we can be independence तभी पाएंगे। तो they have launched this individual सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या होते थे कि मतलब एक इंडिविजुअली पीपल यूज टू प्रोटेस्ट एंड ये दे सेड दैट इसको दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहते हैं। दे सेड दैट एक मार्च लगाएंगे, स्टार्ट्स मार्च फ्रॉम द विलेजेस। ठीक है, विलेजेस को होते हुए सबको इकट्ठा करते हुए मैसेज स्प्रेड करते हुए दे हैव टू मार्च टू दिल्ली। दिस वाज कॉल्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह। एंड हियर आल्सो नॉन वायलेंस वाज द मेजर कॉर्नर स्टोन। एंड ये सत्याग्रही इसको सिलेक्ट किया था। एंड इन दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड। थर्ड का भी आप याद रख सकते हैं, ब्रह्मदत्त, ही वाज द थर्ड satyagrahi in the individual satyagraha. There are a lot of individual satyagrahis marching towards Delhi. This is called Delhi Chalo movement. ठीक है, जो अगस्त ऑफर में हमने देखा था। एंड आफ्टर द इंडिविजुअल सत्याग्रही फाइनली ब्रिटिश सेड दैट भाई हम कुछ करेंगे। ठीक है, फाइनली ब्रिटिश वाज हेल्पलेस, दे वर गेटिंग वीक एंड वीक डे बाय डे इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश द मेजर पावर्स हैव बीन चेंज्ड। Now the US and Russia came into the picture, and they were starting dominating the British and Germany. So British का attitude भी थोड़ा down होता रहा, because they on the international scale also British started crumbling slowly. Then they start that अभी तो कुछ तो करना पड़ेगा। So
now they started focusing on India. Now they've sent a Cripps mission. Cripps mission. Who was Cripps? He was a British government ambassador, you can say. एंड उनका ज़्यादातर क्रिप्स मिशन ने क्या ऑफर किया था, आप इतना याद ध्यान रखिए कि इसमें बहुत सारे फीचर्स दिया हुआ था. एंड दे अग्रीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो अगस्त ऑफर में दिया हुआ था. दे अग्रीड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नाउ दे इवन अग्रीड फॉर ए डोमिनियन स्टेटस. अब फाइनली दे डिसाइडेड ऑन डोमिनियन स्टेटस. And they said that India is now free to decide its relations with the Commonwealth and free to participate in the UN and other international bodies. ये क्रिप्स मिशन ने ये ऑफर किया था. But by this time Indians also were nothing stepping back. अब इंडियंस को लगा था कि अब तो मतलब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. हम एक पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश दूसरे दे रहे हैं. डोमिनियन स्टेटस वाज from long time we are demanding a dominion status, but dominion status was not the demand at this point of time. People were vehemently opposed this, and the failure of Cripps mission immediately launched the Quit India movement. क्विट इंडिया मूवमेंट विद इन मंथ्स गांधी जी ने डिसीजन ले लिया कि अब कुछ नहीं करना है. गांधी जी ऑल्सो लॉस्ट द पेशेंस नाउ at this point of time. Gandhi ji gave a statement like मतलब करो या मरो, do or die. So Quit India movement took shape. बॉम्बे सेशन में ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था क्विट इंडिया मूवमेंट का. दिस वाज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, उसी टाइम पे ये लोग लॉन्च किया था. बट ब्रिटिश वर अंडर कंपल्शन, दे वर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स इन दी इंटरनेशनल एरिना ऑल्सो, इन द वर्ल्ड वॉर ऑल्सो. नाउ ब्रिटिश सेड दैट ये मूवमेंट लॉन्च करने से ही पहले ही मतलब सारे लीडर्स को हम अरेस्ट करके बिठा देंगे. सो ऑल द टॉप लीडर्स वर अरेस्टेड. तो उस टाइम पे बहुत सारे वायलेंस हुआ था. देर वॉज नो प्रॉपर लीडर फॉर दिस मूवमेंट. एक क्वेश्चन भी आया था, देर इज ए नो प्रॉपर लीडर टू क्विट इंडिया मूवमेंट, बट इंडिविजुअल लीडर्स इवॉल्व हुआ था इस टाइम पे. एक अंडरग्राउंड लीडर्स हुआ करता था, एक अलग सा लीडर्स हुआ करता था इसमें. सो अराउंड 1942, बाय द एंड ऑफ 1942 60,000 पीपल वर जेल्ड अराउंड. ठीक है, दिस वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट वायलेंट मूवमेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, वी कैन से. क्विट इंडिया मूवमेंट इज द मोस्ट. क्विट इंडिया मूवमेंट से ही मतलब ब्रिटिश दे ऑलमोस्ट स्टार्टेड लीविंग द कंट्री. मतलब सही में वो क्विट इंडिया मूवमेंट थे. ठीक है. सो विल सी दी मेजर थिंग्स व्हाट हैपेंड इन क्विट इंडिया मूवमेंट. अब कुछ कुछ जगह पे दे हैव डिक्लेयर्ड देयर ओन गवर्नमेंट्स. ब्रिटिशर्स को तो भगा दिया था. दे किल्ड लॉट ऑफ, देयर आर लॉट ऑफ रप्चर्स बिटवीन लोकल्स एंड ब्रिटिशर्स. लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. पीपल गॉट किल्ड एंड you can see the Balia, Tumluk, Satara, Dharwar, Balasore, they were free from British rule, and people there formed their own governments. This is an important feature of Quit India movement. ये कभी हुआ नहीं था. ये न CDM में हुआ था न NCA में हुआ था. This is the unique point of Quit India movement. And revolutionary activities भी हुआ था साथ साथ. जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, SM जोशी, राम मनोहर लोहिया, ये वॉर के टाइम पूरे टाइम पे ये लोग दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग. देयर वाज एन अंडरग्राउंड रेडियो ऑल्सो. एक उषा मेहता एक लेडी थी. देयर आर लॉट ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड उषा मेहता वाज द लेडी हु परफॉर्म्ड द रेडियो वर्क. रेडियो चलाया था अंडरग्राउंड जाके टू स्प्रेड द मैसेजेस. ठीक है. एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स 1944 में गांधी जी को रिलीज किया गया था. एंड वो रिलीज करते ही मतलब ही वेंट फॉर ए फास्ट. वो कहा था कि अब तो इंडिपेंडेंस आना ही चाहिए. देयर इज नो गोइंग बैक ऑन दिस. ब्रिटिशर्स दे हैव टू गो, वी हैव टू गेट द इंडिपेंडेंस नाउ. एंड एट द सेम टाइम 1945 के टाइम पे इट वाज ए मेजर ब्लो. पर्ल हार्बर अटैक हुआ था. अमेरिका ऑलमोस्ट टर्न इनटू सुपर पावर बाय दैट टाइम, एंड रशिया केम इनटू पिक्चर. एंड
इसी के टाइम पे मतलब 1943 में भी दिस वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट स्टेप बाय एन इंडियन, यू कैन से, सुभाष चंद्र बोस ने एक आज़ाद हिंद फौज फॉर्म किया था. He was having a good relations with Germans at that time. Actually, there is a story that he escaped from India and he went to Singapore and this eastern countries. Then he started building an army, and his plan was to attack the British India with the help of Germans. Germans were at war with British, so he sought a help from Germans. So this was happening. Around 45,000 soldiers, it was said that ये form किया था already. And if you have known these things, Andaman में these people have already entered Andaman and they have hoisted the Indian flag. They have declared independence to Andaman Islands much before India got independence. This is a true fact. If you have seen the Andaman tourism or Andaman these things, the facts are there. मतलब अंडमान को 2 साल पहले ही इंडिपेंडेंस मिल चुका है बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. एंड क्विट इंडिया मूवमेंट का मेजर फीचर ये था, इट वाज अ वेरी वायलेंट मूवमेंट, इट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट. सारे लीडर्स अरेस्ट हुए थे. अब ये देख सकते हैं ना कि 1944 में गांधी जी को रिलीज किया था. एंड देर वर लोकल गवर्नमेंट, दिस इज अ मेजर फीचर. मतलब पीपल स्टार्टेड डिक्लेयरिंग कि ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया एंड वी स्टार्टेड रूलिंग. ये एक लोकल गवर्नमेंट्स का जो है ना, ये थोड़ा यूनिक फीचर था इस मूवमेंट का. ठीक है, एंड ये थोड़ा खतरनाक भी था. कोई भी आके बोल देंगे कि मैं लोकल गवर्नमेंट चला रहा हूँ, दैट्स नॉट गुड. बट दीज आर द थिंग्स हैपेंड इन क्विट इंडिया मूवमेंट. जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. देन उसके बाद क्या आया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया था. And it's a high powered mission consisting of 3 cabinet ministers. वो कौन थे ये याद रखिए, पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन का ही क्रिप्स था ये, एंड उसके बाद अलेक्जेंडर. what did they this envisaged? main thing is this has envisaged, मतलब अब तो इंडिया को इंडिपेंडेंस देना ही है, बट दे हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर वे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाना है. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात किया था. ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए ये लोग एक मौका दिया था. एंड एट दैट टाइम मुस्लिम लीग एंड आईएनसी, दे वर बोथ लॉगर हेड्स. मुस्लिम लीग बोला था कि हमको पाकिस्तान डिमांड वाज गोइंग ऑन. ठीक है, सो कैबिनेट मिशन प्लान में ये हुआ था कि फाइंड आउट ए पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर. हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे, बट हाउ थिंग्स शुड बी डन, एक मिशन प्लान फॉर्म हुआ था इसके बारे में. तो इसके बाद मतलब इसी टाइम अराउंड वेवल प्लान टुक प्लेस. देयर वाज अ डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड आईएनसी. टू सॉल्व दिस डेडलॉक, वेवल also has a plan in Shimla. This is called Shimla Conference also. You can just go through these things. Rajagopalachari formula, 1944. These were majorly, these things were to resolve the disputes between INC and Muslim League. Muslim League said that हमें तो पाकिस्तान चाहिए. INC said that थोड़ा बैठ के बात करेंगे. These things, both are not good at each other. So these things happened. राजागोपालाचारी ने मीडिएट किया था. You can just read these things. And for the first time, government of India was in the hands of British. 1946 में they have started electing the new constituent assembly. एक constituent assembly form किया था, and that constituent assembly started building a new constitution for India. British का systems, British का rules, regulations सबको हटा के they have started building our own constitution. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. यू हैव टू नो अबाउट दीज थिंग्स, हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ फ्रेम्ड, क्या क्या फीचर्स है इनका. जस्ट नो लिटिल बिट थिंग्स अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन में बी कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिंग्स. तो हम आगे चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या हुआ है. And this was a constituent assembly existed till the independence.
इंडिपेंडेंस के बाद भी चला था ये। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था, वो बोला था कि हम नहीं बैठेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वी हैव ए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो, दिस टाइप ऑफ व्यू पॉइंट्स लेके बैठे थे। सो फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। आप इतना याद रखिए कि कैबिनेट मिशन प्लान मेनली केम अप टू डिवाइस द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये सेटअप हुआ था 1946 में। Major components of the Constituent Assembly, drafting committee was a major component. It was headed by B.R. Ambedkar. आप इतना याद रखिए कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स किसका है? वल्लभ भाई पटेल का है। अब ये कमिटीज जो है जवाहरलाल नेहरू का है। रिमेंबर दिस थिंग्स। You can see the timeline of formation of the Constituent Assembly and Constitution. यह आप थोड़ा ध्यान में रखने के लिए ये दिया था। 6 दिसंबर, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को हुआ था। टेम्पररी प्रेसिडेंट वॉज सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस वॉज जे बी कृपलानी। एंड 11 दिसंबर 1946 को फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज अपॉइंटेड राजेंद्र प्रसाद। ये बी एन राव जो है, ही वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर थे ये। In total there were 389 members in the Constituent Assembly, just remember, ठीक है। 13th December को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। इट वाज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। दिस वाज ऑलरेडी क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है, रिमेंबर दीज थिंग्स। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कोई अपोजिशन हुआ नहीं था। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। एंड 15 अगस्त को फाइनली इंडिया स्प्लिट इनटू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फाइनली वी acquired इंडिया। एंड 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। दीज थिंग्स, दिस टाइमलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स क्वेश्चंस कम डायरेक्टली। अब हम एक और एस्पेक्ट देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कमिटीज फॉर्म हुआ था, जो हम देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी तो पता है सबको, बी आर अम्बेडकर। पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू ने क्या हेड किया था हम देख लेते हैं। पावर कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। वल्लभ भाई पटेल ने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। वल्लभ भाई पटेल का मेजर रोल तो इस पे था, फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है। सो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। अब ये सब ठीक है। एक राजेंद्र प्रसाद का जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। एंड यू कैन सी ये ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुनिशी, ठीक है। दीज आर द फ्यू ऑफ द कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट। फाइनली हम देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, माउंटबेटन प्लान। दिस वाज मेनली टू डिस्कस इंडिया। अब दो हिस्सों में हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। फ्यू थिंग्स, Bengal and Punjab will be partitioned and a referendum in northeast frontier province and Sylhet district would be held. एक रेफरेंडम के बेसिस पे ये करना चाहिए बोल के एक एक्ट में दिया था। एंड देयर वुड बी ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन मेड बाय द माउंटबेटन प्लान। एंड ये एक छोड़ दिया था प्रिंसली स्टेट्स को। दे हैव द राइट टू either enter India or Pakistan. Then Sardar Vallabhbhai Patel came into picture and he had iron hand in confiscating all the princely states. 3 स्टेट जो थे उस टाइम पे जो बहुत ही मतलब रिलेक्टेंट थे, एक तो हैदराबाद थे, एक जूनागढ़ गुजरात का, और एक कश्मीर। these 3 states were reluctant. They were reluctant in joining the India, but finally they were also joined into India. So all these things ये आप याद रखिए। दीज आर लिटिल बिट समटाइम्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, और ये प्रिंसली स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ध्यान में रखिए। नाउ कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, फाइनली ऑन August 15, 1947, ठीक है, इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस एंड वी फिनिश आवर हिस्ट्री रिविजन क्लासेस। अब हम ये बचते हैं कि वी हैव seen, मतलब on a whole we have seen
many things, but still individually we haven't seen personalities. भगत सिंह के बारे में हमने बात ही नहीं किया था. एंड चंद्रशेखर आज़ाद, रेवोल्यूशनरीज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. गांधी जी के बारे में बहुत कम बात किया था. अंबेडकर जी के बारे में बहुत कम बात किया था. अंबेडकर जी, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम बी आर अम्बेडकर. हमने देखा नहीं था इस सीरीज में. सो वी विल बी हैविंग वन मोर last video, I would say, and these videos will be a consolidated video for your history revision. These will be enough, I would say. इसके अलावा भी आपको अगर पढ़ना है तो you can go for it, but I would say these are the basic requirements for any exam. मतलब any exam, individuals का जब आप देखेंगे तो you will get a much more confidence. Just revise these videos, just revise, go through the videos again and again, then you can come to know. कहीं पे भी कुछ भी अगर clarity नहीं है, you can just post it in the comments, and I think this will be sufficient. Individual जो इसमें cover नहीं हुआ है, we will cover these things in the individual while taking up the individual personalities. हम देखेंगे गांधी जी ने क्या क्या किया था, क्या क्या बुक्स थे, क्या क्या मूवमेंट्स लेके आया था साउथ अफ्रीका में, उनका क्या था. बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या किया था. बी आर अम्बेडकर के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है, मतलब लगभग. गांधी जी और अम्बेडकर आर द टू फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इन विच यूपीएससी इज इंटरेस्टेड. ठीक है. एंड going by the last 4 to 5 years trend of UPSC, I would say you have to go the extra mile. जो एक्स्ट्रा माइल मतलब एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं वही क्लियर कर पाएंगे. एंड ए रूटीन स्ट्रैटेजी और ए रूटीन बुक्स पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है. यू हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप. तो नेक्स्ट वीडियो, the individual satyagraha, we will be covering more. Sorry, I was in the carried away with all the lectures by this time. Individual satyagraha पे आ गया, but it was not individual satyagraha. Individual personalities पे हम लोग बात करेंगे, and that would be a very fun for you. Mind my words. And we'll see. मतलब history is a very safe subject to score in prelims. आई वुड से प्रीलिम्स में हिस्ट्री का वेटेज जो है ज़्यादातर मतलब 8 से लेकर 10 क्वेश्चन तक तो हर साल है. एवरी ईयर 10 क्वेश्चंस. बट द पॉइंट इज वो 10 क्वेश्चंस में ये चार क्वेश्चन जो है वेरी डिफिकल्ट आते हैं. 4 से लेके 5 क्वेश्चन तक कम से कम. सो 50% क्वेश्चंस यू कैन अटेंड, बट 50% अदर टफ क्वेश्चंस जो है ना, हमने लगभग सारे कवर किया था इस वीडियो में. देन we will see what can be done in the next videos. Okay, thanks for your patience, thanks for cooperation. Okay, thanks for watching, and keep watching, keep studying, and stay healthy. Thank you.